Good morning, student. I am Professor R.S. Uppal. Today we are going to discuss some more questions of differentiation in product rule, quotient rule, chain rule and implicit function. Now let us take a question in which three functions are being multiplied to each other. Now product rule has to be applied for this. Let us club two functions in one and taking this as a first function and this as a second function. Now dy over dx, differentiation of y with respect to x, keeping the first function same, you have to differentiate the second. पहले को सेम रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, प्लस कीप द सेकेंड फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन को सेम रख के पहले को डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स. फिर से देखिए बेटे, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, सेकेंड सेम डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको फिर से प्रोडक्ट रूल से करेंगे. एक्स ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 by x प्लस लॉग एक्स, एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, की फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड plus second function same derivative of the first. Now x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपके, e की पावर x प्लस log of x ब्रैकेट शुरू x, the derivative of e की पावर x, you know already that कि the फॉर्मूलेस की लिस्ट में जो दिया था e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है. देन अगेन e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. नाउ e की पावर x इज कॉमन थ्रू आउट, तो लेफ्ट आउट इज 1 प्लस log x इंटू x, x log x, log x into 1, that is log x. This is the final answer. इसमें आप dy by dx हर एक में लिख देंगे बेटे. Now let us take another question of quotient rule. Secant x minus tan x, secant x plus tan x. y will be dy over dx will be quotient rule. नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. अब देखिए सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स tan x माइनस tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x. न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीकेंड x का अगेन डेरिवेटिव सीकेंड x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x. Now open up the bracket, secant x into this, that becomes secant square x tan x, secant x into again secant cube x, स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा ये. tan x into this secant x tan square x, tan x into tan x is tan square x minus secant square x into tan x, that is tan x
secant square x. बाहर माइनस है, you have to keep it in bracket. Secant x into this, that will be secant square x tan x. Then secant x multiplied by secant square x, that becomes secant cube x. Minus tan x into secant x tan x, that will be minus secant x tan square x. Minus tan x into this is minus tan x secant square x. अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर tan x, बिल्कुल वैसे का वैसे ही, माइनस secant क्यूब x प्लस secant x tan स्क्वायर x माइनस tan x secant स्क्वायर x. डिनोमिनेटर देखो बेटे वही का वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. secant x प्लस tan x होल स्क्वायर वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. ये आ गया माइनस tan x secant स्क्वायर x, फिर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करते हुए ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाले साइन नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले साइन पॉजिटिव हो जाएंगे. अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा. देखो secant square x tan x minus of secant cube x minus of this minus and minus become plus secant x tan square x. This minus and minus become again plus tan x secant x secant square x. डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है. अब वी विल कैंसिल आउट, नेगेटिव विल ना पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो सेम साइन है वो ऐड हो जाएंगे. tan x secant square x, tan x secant square x, one is positive, other is negative, will cancel out. secant x tan x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नाउ बचे हुए फंक्शंस को फिर से लिख देंगे, dy by dx is equal to minus secant cube x minus secant cube x, that will be minus 2 times secant cube x. secant x tan square x, secant x tan square x, इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा 2 times secant x tan square x divided by secant x plus tan x का होल स्क्वायर. मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हैं secant x. कॉमन लेने पे पॉजिटिव वाला पहले लिख दीजिए, 2 secant x कॉमन आ गया, लेफ्ट आउट इज tan square x माइनस secant square x अपॉन secant x प्लस tan x होल स्क्वायर. नाउ secant square x माइनस tan square x 1 होता है, पर यहां पे दिया हुआ है tan square x माइनस secant square x. We should remember that secant square theta minus tan square theta is always equal to 1. But in this question tan square minus secant square दिया है, it will be minus 1. 2 secant x minus 1 upon secant x plus tan x whole square. It comes to be minus 2 secant x over secant x plus tan x whole square. This is the final answer of differentiation dy over dx. Now let us discuss some question of chain rules.
y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हो उसको हम अलग पैरामीटर ले लेते हैं। साइन एक्स इक्वल टू यू, लेट देन ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ y बिकम cos u। साइन की जगह u आ गया। सेपरेटली इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन वी विल कंबाइन। दैट इज कॉल्ड चेन रूल। dy ओवर du, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन u, माइनस साइन एंड u की वैल्यू है साइन x। इधर du अपॉन dx, साइन x का डेरिवेटिव सिंपल cos x। नाउ यू विल कंबाइन बाय चेन रूल टू फाइंड आउट dy by dx। हमारा मोटो है dy by dx निकालना, बिकॉज y इन द फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। वी हैव फाइंड आउट dy by du इंटू du by dx करेंगे। ऑटोमेटिकली इसकी सेपरेटली वैल्यू पता है, इसकी सेपरेटली dy by dx आ जाएगा। dy by du की वैल्यू इज माइनस साइन साइन एक्स। du by dx की वैल्यू है cos x। दिस इज द आंसर, माइनस साइन साइन एक्स इंटू cos x। देखो चेन रूल यूज होता है जब एंगल में कोई ज्यादा चीजें दी हो या पावर में बहुत सारी चीजें हो, तो हमें चेन रूल इस्तेमाल करना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। वन मोर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot x स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट cot x स्क्वायर इक्वल टू t समानांतर and x square equal to u, then automatically y becomes 2 times t का स्क्वायर रूट एंड t का इक्वल टू cot ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू u है तो cot u आ जाएगा एंड u विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। तीन वेरिएबल आपने लेट कर लिए, अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। dy ओवर dt 2, t की पावर 1/2 का डेरिवेटिव जो होगा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, t की पावर माइनस 1/2, दैट मीन्स 1 अपॉन t का अंडर रूट। 1 अपॉन इसलिए कि ये नेगेटिव पावर है, नीचे आ जाएगा, और 1/2 के कारण अंडर रूट। इसमें फाइनल वैल्यू dy by dt की आ जाएगी, 1 अपॉन t की वैल्यू पुट कर देंगे, cos x स्क्वायर cot x स्क्वायर, इधर से dt by du, cot t का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, cot u का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u की वैल्यू x स्क्वायर पुट कर देंगे, देन इट बिकम्स dt by du इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। अब du का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इन तीनों को चेन रूल से कंबाइन करना है। चेन रूल होगा dy by dx इज dy by dt, dt by du एंड du by dx। t से dt से कैंसिल, du से du कैंसिल, बचेगा dy by dx। इन तीनों की सेपरेटली वैल्यू पता है आपको, वैल्यू पुट कर देंगे। dy by dt की वैल्यू 1 अपॉन cot x स्क्वायर का अंडर रूट, dt by du माइनस कोसिकेंट स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर, एंड इसकी वैल्यू 2x। फाइनली आप लिख देंगे du बाई डी dy बाई डी एक्स माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रॉपर्टी अंडर रूट कर दीजिएगा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 कॉट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, देखोगे ये कॉट एक्स स्क्वायर को t मान लो, इट बिकम्स 2t का अंडर रूट। कॉट एक्स स्क्वायर को t माना, अब एक्स स्क्वायर आगे अलग है तो एक्स स्क्वायर को भी u मान लिया आपने, तो 2 बार ही सब्स्टिट्यूशन किया है ताकि चेन रूल इजीली लग सके। इसका डेरिवेटिव 2t के बाद 1/2 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव में देखो पावर नीचे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, 2 and 2 कैंसिल आउट, t की पावर माइनस हाफ, 1/2 माइनस 1 इज माइनस हाफ। सिंस नेगेटिव है इसलिए 1/, आ गया, और t की पावर 1/2 है तो t अंडर रूट आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/cot x स्क्वायर अंडर रूट। अब राइट साइड सेकंड वाले का डेरिवेटिव t इक्वल टू कॉट u, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट u का आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें x स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इन तीनों को चेन रूल से कंबाइन करेंगे। चेन रूल क्लियरली आपको पता होना चाहिए। dy बाई डी एक्स इज पहले dy बाई डी टी, फिर dt बाई डी यू, फिर du बाई डी एक्स। t से t कैंसिल, dt से dt कैंसिल होके du से d2 कैंसिल करके बचेगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज रिप्रेजेंटेड इन 3 वे, dy बाई dt, dt बाई du, du बाई डी एक्स। अब सेपरेटली इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू 2x। 2x इंटू माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटे y इज इक्वल टू सीकेंट ब्रैकेट में tan रूट एक्स। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर उसके बाद एक और ट्रिग्नोमेट्री है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आप देखो एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, फिर उसके बाद एक और फंक्शन। अगेन यूज चेन रूल, सब्स्टिट्यूट दिस एज t, tan ऑफ रूट एक्स इक्वल टू t। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, t लो u लो आपकी मर्जी है, और रूट एक्स एज u। तो y ऑटोमेटिकली बिकम सीकेंट t, t becomes tan u, रूट x को u लिया है, and u is root x which can be written as x की पावर 1/2। अब तीनों को अलग अलग डेरिवेटिव करिए, dy ओवर dt। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा tan थीटा। ये फॉर्मूले की लिस्ट फर्स्ट वीडियो पे दी गई थी डेरिवेटिव के, सीकेंट थीटा tan थीटा, देन सीकेंट t tan t। यहां वेरिएबल t है तो t लेंगे, dt ओवर du। tan u का डेरिवेटिव, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो tan u का सीकेंट स्क्वायर u। du ओवर dx, इसमें भी देखो पावर नीचे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 du बाई डी एक्स, 1/2 x की पावर माइनस हाफ, माइनस है इसलिए नीचे ले जाएंगे, और 1/2 है इसलिए अंडर रूट, 1/2 रूट एक्स
नेगेटिव होने के कारण 1 आ जाएगा और 1/2 के कारण अंडर रूट। अब इन तीनों को चेन रूल से कंबाइन करेंगे। dy ओवर dx, dy ओवर dt, dt बाई du एंड du बाई dx। तीनों की सेपरेटली वैल्यू पता है, आप पुट कर देंगे। dy बाई dt की वैल्यू secant t tan t, सबको बाद में x में चेंज करेंगे। इसको secant स्क्वायर u एंड देन 1/2 रूट x, सबको x में चेंज करेंगे। secant t विल बी इक्वल टू tan रूट x, tan रूट x, secant स्क्वायर u की वैल्यू रूट x है, secant स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। This is the final answer, dy over dx. Entire function is now in x. Let us take one more question of chain rule. y is equal to sin ब्रैकेट शुरू cos of x square, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रिक। उसी तरीके से आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप एक वेरिएबल लेंगे, cos of x square इक्वल टू p, then x square इक्वल टू u, let, so then y becomes sin of p। सेपरेटली डेरिवेटिव निकालेंगे, यहां t आ जाएगा cos of x square की वैल्यू u एंड u इज इक्वल टू x square। तीनों का सेपरेट वैल्यू डेरिवेटिव, dy बाई dt, साइन t का डेरिवेटिव cos t, t की वैल्यू आप यहीं पुट कर सकते हैं या लास्ट में। cos t की वैल्यू है cos of x square dt बाई du, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन u, u की वैल्यू साथ ही पुट कर दीजिए, साइन u की वैल्यू u इज x स्क्वायर du बाई dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर से चेन रूल से कंबाइन करेंगे, चेन रूल आएगा dy ओवर dx, dy बाई dt, dt बाई du and then du by dx, dy over dx, finally answer dy by dt की वैल्यू cos x square dt by du minus sin x square (2x), then it becomes minus 2x sin of x square cos of x square. This is the answer, 2x sin of x square cos of x square। एक बार फिर से देख लीजिएगा जरा ध्यान से, y is equal to sin cos x square, हमने सब्स्टिट्यूट किया cos x square को t और x square को u, sin becomes y becomes sin t, dy by dt cos t, cos t की वैल्यू पुट कर दी cos x square, इधर t इज इक्वल टू cos u था, dt by du इज माइनस sin u, u की वैल्यू पुट कर दी दैट इज x square, u इक्वल टू x square है, du by dx इज 2x, x square का डेरिवेटिव 2x, पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम। चेन रूल का फॉर्मूला, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, चेन रूल, dy by dx is dy by dt into dt by du, du by dx, dy by dx सेपरेटली इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर इसकी, तीनों अलग अलग ब्रैकेट में। अब 2x पहले ये लिख दिया, फिर sin x स्क्वायर लिख दिया, फिर cos x स्क्वायर,
पहले सिंगल वेरिएबल वाला, फिर 2, फिर ये। अब देखो बेटे, आप लोग स्टूडेंट्स पहचानोगे कैसे कि कौन सा रूल किस में लगेगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात, वेन एवर प्रोडक्ट इज गिवन, 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब 2 चीजें डिवाइड हो रही हैं तो कोशेंट रूल लगेगा। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है या फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा। इन दोनों में चेन रूल लगेगा बेटे। इसमें आप साइन एक्स को टी मानेंगे और इसमें भी आप साइन एक्स को टी मानेंगे। ये क्वोशंट रूल, क्यू रूल लिख दिया मैंने, और ये प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट रूल, 2 चीजें डिवाइड हो रही है, क्वोशंट रूल, फंक्शन की आगे एंगल में फंक्शन है, चेन रूल बाय सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, चेन रूल। इम्प्लिसिट फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।